So in the previous episode, I have talked about many a times about EMF and the potential difference, right? तो EMF और potential difference में थोड़ी सी difference होती है. What is the basic difference? जान लें. EMF is the maximum potential difference. Like suppose if you think of a cell, आप एक सेल की बात कर रहे हैं, राइट? यू माइट हैव सीन अ ड्राई सेल, सब लोग देखे होंगे ड्राई सेल को. अब एक सेल की बात कर रहे हैं और ये सेल जब यूज में नहीं है, तो इन दैट सिचुएशन द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टर्मिनल and this terminal, right? The maximum potential difference between these two terminals, between these two electrodes of the cell, when not in use, is called EMF of the cell, means electromotive force of the cell. समझ गए? जब ये सेल यूज में नहीं है, उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द टर्मिनल्स, उसको हम EMF कहते हैं. और when this cell is in use, so in that case क्या होगा कि इसकी जो रेजिस्टेंस है, इस सेल की तो जो रेजिस्टेंस है, because cell is also a conductor, और अगर कंडक्टर है तो कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, कम हो ज्यादा हो, जो कुछ भी हो, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा. So due to the internal resistance of the cell, the potential difference across the terminals of the cell will decrease a bit, थोड़ी सी घट जाएगी. और वो घटी हुई जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, राइट? या तो हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल और नहीं तो बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, राइट? सो EM of the cell, the maximum potential difference between the two electrodes of a cell when cell is not in use. इतना लंबा चौड़ा नहीं कहना चाहते हैं अगर, तो potential difference across the terminals of the cell when cell is not in use. Simple. And potential difference or terminal potential difference of the cell, potential difference between two electrodes or across two terminals of the cell when cell is in use. ठीक? अब चलिए मैं आपको एक छोटी सी न्यूमेरिकल दिखा करके बता करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, तो लाइक सपोज दैट यह एक रेजिस्टेंस है, राइट? एंड the resistance is suppose 4 ohm. The resistance is suppose 4 ohm, right? And this is a cell. और इस सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, माइंड, इस सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो दैट इज 0.5 ohm, राइट? 0.5 ohm. इस सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, अभी मैंने बताया था ना कि कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगी ना सेल की, तो वो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितनी है? 0.5 ओम. और EMF ऑफ द सेल, EMF इस सेल की EMF मान लेते हैं 6 वोल्ट, सपोज 6 वोल्ट, फाइन. और इससे बेहतर ये होगा कि लेट इट बी 5 ओम एंड लेट इट बी 1 ओम. चलिए इंटरनल रेजिस्टेंस को हम 1 ओम मान लिए और इस रेजिस्टेंस को 5 ओम मान लिए. अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस को नहीं कंसीडर करते थे, याद कीजिएगा इन द प्रीवियस एपिसोड्स आई हैव टॉट यू, if we were not considering the internal resistance, so what were we doing? The potential difference across this 5 ohm was taken equal to 6 volt.
लेते थे कि नहीं लेते थे? ओके, you will see my previous episodes. In that I have not taken internal resistance of the cell. तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 5 ओम हम कितना लेते हैं? 6 ओम. बट राइट नाउ व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस? टोटल रेजिस्टेंस इंक्लूडिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. टोटल रेजिस्टेंस is equal to R plus small r. R represents the resistance of the resistors. Equivalent resistance of the resistors. यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक रेजिस्टेंस लिए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर 3-4 होते तो equivalent resistance of the resistors. And this small r is the internal resistance of the cell. So that is equal to 5 plus 1 is equal to 6 ohm. And what is the EMF of the cell? EMF of the cell है आपका 6 volt. तो टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट कितना हो जाएगा? I is equal to V by R, 6 by 6, okay, is equal to 1 ampere, is equal to 1 ampere, right? So now what will be the potential difference of the cell? Potential difference of cell is equal to the EMF of the cell and minus potential difference across the cell. Potential difference across the cell. ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? माइनस I टू इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि V इक्वल टू आया होता है ना, राइट? सो दैट इज इक्वल टू 6 माइनस I कितनी है पूरी सर्किट में या सेल के थ्रू I कितनी फ्लो कर रही है? 1 एम्पियर. और रेजिस्टेंस कितनी है? 1 ओम. तो इक्वल टू 6 माइनस 1 इक्वल टू 5 वोल्ट. तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल कितनी हो गई? 5 वोल्ट. इसका मतलब इसके अक्रॉस 6 वोल्ट नहीं होगा, इसके अक्रॉस कितना होगा? 5 वोल्ट. आई होप अंडरस्टूड दिस. इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी? 5 वोल्ट. AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी? 5 वोल्ट. तो EMF ऑफ द सेल कितना था? 6 वोल्ट. लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल कितना आया? 5 वोल्ट. समझ गए आप लोग? I hope you must have understood the difference between EMF of the cell and terminal potential difference of the cell, or simply potential difference of the cell. Thank you.